Hello students, how are you? This is my second video in the series of the videos for admission chapter. Alright, so first of all you do one thing, you take a screenshot of this if you need this PDF, or you can send an email to me in my YouTube channel. My email ID is written there. I can send you all the PDFs of this entire series. Okay, hope you have taken the screenshot for this. Thank you. So now let's focus. So in this video we are going to practice the various questions about the treatment of the goodwill premium which is brought by the new partner. So in my first video I have already explained the various treatment of the goodwill premium. So here I will be practicing total 5 questions. So we will focus on the questions here. Alright. So this is the question number 1. First of all we will do. Okay, so let me zoom it so that we can focus on that only. So this is the question. First we read the question. So if A, B and C share the profits in 5:3:2 ratio, they admitted W as a new partner and decide to share the profits in 4:3:2:1 ratio. Alright, so old ratio is this 5:3:2 and new ratio is 4:3:2. Alright, at this time goodwill appeared in the balance sheet at 50,000. So the old goodwill which appear in the balance sheet, that is 50,000. So we will write off. It means we will close the goodwill account in the old ratio. It is a standard treatment. In our books, in the illustration, there are alternative treatment is also given, but I will suggest you do only this. Always close the old goodwill account, or we can say always write off the old goodwill in the old ratio. All the partners will be debited in the old ratio and goodwill account will be credited. Okay, though there are alternative solutions given in the book. They estimated goodwill again as rupees 80,000 of the firm. Right? Why they have estimated this goodwill? Because this is a reconstitution time. A new partner has been admitted. So whenever a new partner is admitted, goodwill is estimated once again. So we can say the new goodwill is 80,000 of the firm and the old one is this. Okay. So the W brought rupees 2 lakh as capital and his share of premium for goodwill in cash. So W, who is a new partner, he is bringing 2 lakh rupees as his share of capital and he will also bring his share of premium also. In the cash, it is written very clearly, share of premium for goodwill in cash. It should be written very clearly. All right, and then the last instruction is A, withdrew his share. So whatever goodwill share he will receive, he will withdraw it. It is written. Okay students, so old ratio is written here, new is written here. So I am beginning the solution with sacrificing ratio. Sacrificing ratio, as it is written in the bracket, its formula is old ratio minus new. When I apply this formula for the A, how I solve it? 5/10 minus 4/10. For B, 3/10 minus 3/10. For C, 2/10 minus 2/10. For W, I will not write anything. Okay, why I will not write anything? Because W is a new partner. He is coming in the business for 1/10 share. How do I know 1/10? From the new ratio 4:3:2:1. टोटल इज 10. सो W का शेयर कितना हुआ? 1/10. तो W तो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, वो उसका गेन है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ W पे, न्यू पार्टनर पे नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ अप्लाई होगा. जब सॉल्व किया तो क्या देखा? A का आंसर आ रहा है 1/10, B का 0, C का 0. यानी कि W के एडमिशन पर B और C को कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और सिर्फ A सैक्रिफाइस कर रहा है, ओनली A. तो यानी कि जो नया गुडविल प्रीमियम जो लेकर आया है W, वो सिर्फ A को मिलेगा. ऑलराइट, तो चलो अभी इसकी हम जर्नल एंट्रीज करना शुरू करते हैं. टोटल यहाँ पे 4 जर्नल एंट्री होगी हमारी. चारों जर्नल एंट्री पर अभी हम फोकस करते हैं. ओके, जो यहाँ पे मैंने 4th जर्नल एंट्री की हुई है यहाँ पे सबसे पहले, इसको देखें एक बार. ये जर्नल एंट्री है, इसमें मैंने गुडविल को, ये ओल्ड गुडविल है, बैलेंस शीट की गुडविल है, यहाँ नरेशन इधर लिखी हुई है, गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशियो, एरो लगाया हुआ है, ये इसकी नरेशन है. तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया है, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉइंट.
50,000 और तीनों पार्टनर को डेबिट किया है ओल्ड रेशो में, 25,000, 15,000 एंड 10,000 ओल्ड रेशो में हमने ये किया है। तो ये एंट्री मैंने चौथे नंबर पे लिखी है, इसको मैं पहली एंट्री भी करके लिख सकती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। एनीवे यहाँ पर फर्स्ट जर्नल एंट्री फिर मैंने की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। तो टोटल 2,08,000 आ रहा है बिजनेस के अंदर, डब्ल्यू की कैपिटल का आ रहा है 2 लाख और गुडविल प्रीमियम आ रहा है 8,000। ये कैसे पता चला कि उसको 8,000 लाना है? क्योंकि फॉर्म की जो न्यू गुडविल जो क्वेश्चन में दी हुई है ऊपर हमने पढ़ा वो 80,000 थी, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, तो 80,000 का 1/10 कितना हुआ? 8,000 हुआ, तो इसलिए 8,000 वो गुडविल प्रीमियम लाया है। सेकेंड जर्नल एंट्री, गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ ए को मिल रहा है, ओनली ए है सेक्रीफाइस, सो गुडविल प्रीमियम डेबिट 8,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000, नरेशन लिखी डब्ल्यू कंपनसेट्स ए। इसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर सबसे ऊपर ये लाइन कि ए विदड्रू हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, उसने निकाल लिया था, ऐसा पॉसिबल है ना? तो इस जर्नल एंट्री में, थर्ड जर्नल एंट्री में, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000, ए विदड्रू हिज शेयर, ए को जो गुडविल प्रीमियम मिला वो उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 पर बेस्ड ही होगा ज़्यादातर, कि मेरे सारे क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड होते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, ओके, so as I can read question number 2 from here, this is the same question as 1 here, and with a change that W does not bring his share of goodwill premium in cash। तो ये हमने इसको दूसरा केस कर दिया, यानी कि कैपिटल का तो वो 2 लाख लेकर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज किया है कि वो गुडविल प्रीमियम अपना कैश में नहीं लेकर आ रहा है। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी, रेशियोज वगैरह सब कुछ सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट 2 लाख, तो यानी कि वो सिर्फ अपना शेयर ऑफ कैपिटल लाया है, 8,000 गुडविल प्रीमियम नहीं लाया। सेकंड जर्नल एंट्री में लेकिन ए को फिर भी कॉम्पनसेट किया जाएगा 8,000 से। कहाँ से किया? डब्ल्यू के करंट अकाउंट से, क्योंकि डब्ल्यू गुडविल प्रीमियम 8,000 कैश नहीं लाया, तो डब्ल्यू का करंट अकाउंट खोला जाएगा, तो डब्ल्यू के करंट अकाउंट को डेबिट किया, डब्ल्यू करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000। अगर ये पैसा गुडविल प्रीमियम का डब्ल्यू लेकर आता कैश में, तो यहाँ पे डब्ल्यू के करंट अकाउंट को डेबिट ना करके गुडविल प्रीमियम को डेबिट करते हैं। याद है ना, अभी किया था क्वेश्चन 1 में, तो सीखा। अगर गुडविल प्रीमियम कैश में लाते हैं तो जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, और दूसरी एंट्री गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हाँ, ओके, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू के करंट अकाउंट का किया है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स के अंदर, इलस्ट्रेशंस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे करंट अकाउंट की जगह पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही कॉम्पनसेट कर देते हैं, जैसे कि डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा किया हुआ होगा, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आपको यही सीखना चाहिए करंट अकाउंट का, क्योंकि आगे जाके जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, तो वहाँ पे ठीक आंसर हमारा जो है करंट अकाउंट के थ्रू ही आता है। तो मेरा सजेशन है आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करंट अकाउंट से ही क्वेश्चन करें, कैपिटल अकाउंट से ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा वही सेम 1 के ऊपर बेस्ड है, तो लिखा है सेम क्वेश्चन एज 1, तो चेंज क्या किया? W brings only ₹3,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। हाँ, टोटल गुडविल प्रीमियम 8,000 का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 3,000 कैश लेकर आया, तो ये हो गया पार्शली गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन कैश एंड पार्शली नॉट ब्रॉट। ठीक है, तो थर्ड केस हो गया, जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2,03,000 टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट 2 लाख टू गुडविल प्रीमियम 3,000, तो 2 लाख रुपए कैपिटल के लाया, सिर्फ 3,000 गुडविल प्रीमियम लाया कैश, तो ये एंट्री समझ आ गया। दूसरी जर्नल एंट्री में जितना गुडविल प्रीमियम कैश आया वो ए को दे दिया अलग, यही एंट्री होती है ना। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो नरेशन इसकी होगी ए इज कॉम्पनसेटेड फॉर द गुडविल प्रीमियम। थर्ड जर्नल एंट्री होगी डब्ल्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 5,000 से, तो क्योंकि 5,000 वो कैश में नहीं लेके आया डब्ल्यू, तो ए को कॉम्पनसेट तो फिर भी किया जाएगा, तो कहाँ से किया? उसके करंट अकाउंट से। ठीक है, समझ आ गया। इसकी नरेशन देख लो, रेड से लिखी हुई है क्या? ए इज कॉम्पनसेटेड पार्शली बाय द गुडविल प्रीमियम अकाउंट एंड पार्शली बाय द करंट अकाउंट ऑफ डब्ल्यू, दोनों का मिक्स हो गया। ठीक है,
तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब ये 1 से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट अलग क्वेश्चन है। इसके फिगर्स अलग है, पार्टनर्स अलग है, रेशियो सब कुछ अलग है, लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ सॉल्यूशन पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया डायरेक्टली। आप समझ जाएंगे, ध्यान देखते जाइए। थोड़ा इसको और एनलार्ज कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं इसको हम। यहाँ कितने पार्टनर नज़र आ रहे हैं? 5 पार्टनर नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और ई को हमने एनसर्कल किया तो नेचुरली वो न्यू पार्टनर है। ओ आर मीन्स ओल्ड रेशियो, ए बी सी डी की हो गई 4:3:2:1। ई के नीचे ब्लैंक है, यानी कि वो न्यू पार्टनर है इसलिए ब्लैंक है। न्यू रेशियो हो गई 1:1:1:1:1। तो यानी कि मैंने क्वेश्चन में अज्यूम किया हुआ है कि ई इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ ई ऑल द पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। इक्वल हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और इनको माइनस किया जिस तरीके से करते हैं आप ध्यान से देख लीजिए। फाइनल इसका आंसर आ रहा है ए का 2/10, बी का 1/10। पॉजिटिव आंसर है दोनों का, तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सी का आंसर 0 आ रहा है, तो सी के ऊपर नो इफेक्ट। डी का आंसर -1/10 आ रहा है, तो गेन। ये इंटरेस्टिंग नया पॉइंट है क्वेश्चन का। डी जो कि पुराना पार्टनर है, लेकिन ई के एडमिशन के टाइम पर इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग डी गेन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? एक तो ई कॉम्पनसेट करेगा ए और बी को, क्योंकि ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके अलावा डी भी कॉम्पनसेट करेगा ए और बी को, क्योंकि उसको भी गेन हो रहा है। आई बात समझ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक्स में ऐसी इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। सी अनअफेक्टेड है, सी को कोई कॉम्पनसेट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि जब नया पार्टनर एडमिट होकर आए तो उस समय एस्टिमेटेड गुडविल मैंने 50,000 अज्यूम की है। एज आई सेड ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ वहाँ। तो एस्टिमेटेड गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000। तो इसमें ई का कितना शेयर हुआ? ई आया ना 1/5 शेयर के लिए, तो ई का हो गया 10,000। 50,000 को 5 से डिवाइड किया 10,000। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमने जर्नल एंट्री करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम जर्नल एंट्री पर आते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। ओके, तो पहली जर्नल एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू ईज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। तो ई जो कि नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, 2 लाख रुपए वो कैपिटल के लेकर आ रहा है, और 10,000 रुपये जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे अपना गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है। हो गई एंट्री। ई ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश एंड गुडविल प्रीमियम ऑल्सो। सेकंड जर्नल एंट्री यहाँ लिखी है, गुडविल प्रीमियम दे दिया। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये 2:1 में दे दिया उनको। ये इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नरेशन में ज़रूर मेंशन करना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड जर्नल एंट्री इम्पॉर्टेंट, न्यू बट इजी। डी को यहाँ पर गेन हुआ था ना 1/10, ठीक है। तो फॉर्म की कितनी गुडविल एस्टिमेट की हुई हमने? 50,000, ये कोने में लिखा है 50,000, ठीक है। तो 50,000 का 1/10 कितना हुआ? 5,000। तो डी कॉम्पनसेट करेगा अपने करंट अकाउंट से ए और बी को बाय 5,000। डी पैसा नहीं लाएगा घर से, डी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, ओके। तो डी अपने करंट अकाउंट से कॉम्पनसेट करेगा। तो ये रही एंट्री। डी इज करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 3,333 है, यहाँ पर एक 3 कम लिखा हुआ है, 3,333, ये है 1,667। तो इसको इन्होंने 3:2 ऊपर, हाँ 2:1 रेशियो आया था ना, सैक्रिफाइसिंग 2:1 रेशियो में बांट दिया, कंपनसेट कर दिया। क्या लिखा है यहाँ? डी कंपनसेट्स ए बी फॉर द गेन ही रिसीव्स। और कौन से रेशियो में? वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ आ गया? अब ये डी का शेयर कैसे आया था मैंने यहाँ किया हुआ है, आपको मैंने वर्बली ऐसे ही समझा दिया। हाँ, कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये बता दूँ यहाँ पे एक 3 कम लिखा है, ए के आगे 3,333 होना चाहिए। ऑल राइट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो ज़रूर देख लेना एक बार। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट आता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। तो ज़रा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम फटाफट। आसान है, मुश्किल नहीं है। गुडविल की इन्फॉर्मेशन जब नहीं दी होती तो कैसे पता लगाते हैं? कैपिटल
बैलेंसेज ऑफ ए एंड बी, मैंने दो पार्टनर अज्यूम किए सिर्फ ए और बी, उसके ऊपर OR लिखा है, मतलब उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 है, ठीक है। तो उनके कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2020 वर 53,000 and 67,000 रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, उनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस ए और बी के दिए हुए 53 और 67। उस समय क्या किया उन्होंने, दे एडमिटेड डब्ल्यू एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट हु ब्रिंग्स 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और जो 50,000 अपने शेयर ऑफ कैपिटल के लिए लेकर आया, उसका शेयर है 1/4, जिसके लिए वो 50,000 कैपिटल लाया। एंड ऑल्सो ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। लेकिन क्वेश्चन ने तो मेंशन ही नहीं किया कितना लाया, तो यानी कि बच्चे को खुद पता लगाना है कि भैया कितना लाया, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, तभी तो जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल को दो तरीके से कैलकुलेट किया है, और दोनों कैपिटल के डिफरेंस को हमने गुडविल माना है। पहला तरीका क्या है, हमने ए बी सी तीनों की कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हुई है उनको लिखा और ऐड कर दिया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी, तीनों को ऐड किया तो टोटल आया 170। ये एक्चुअल कैपिटल होगी डब्ल्यू के एडमिशन के बाद। लेकिन कैपिटल कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है फर्म की कैपिटल का। इफ डब्ल्यूज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 50,000, 1/4 हिस्से के लिए वो 50,000 कैपिटल लाया, देन द फर्म्स कैपिटल फॉर 4/1, फर्म के पूरी कितनी कैपिटल होगी, 50,000 को 1/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब उसके उल्टा 4/1, तो फर्म की कैपिटल आ गई 2 लाख। तो फर्म की कैपिटल दो तरीके से निकाली, एक तो ये ऊपर वाला तरीका एक्चुअल कैपिटल ऐड कर दी, और दूसरा यहाँ पे कैपिटल निकाली हमने सिर्फ डब्ल्यू के शेयर के बेसिस पर। डब्ल्यू के आने के बाद अब कैपिटल होगी 2 लाख, लेकिन अभी तो एक्चुअल कैपिटल को ऐड करने पे सिर्फ 170 आ रहा है, तो यानी कि 30,000 रुपए गुडविल प्रीमियम। तो ये जो गुडविल प्रीमियम आया, ये फर्म का गुडविल प्रीमियम आया है, गुडविल आई है फर्म की। तो डिफरेंस देखो ग्रीन उसमें लिखा है, डिफरेंस ऑफ द टू कैपिटल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। तो दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस 30,000 है, ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल 30,000 है, हाँ, तो जो कि नया पार्टनर आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए, तो उसका कितना शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम होगा, 30,000 का को 4 से डिवाइड करो 7,500, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री देखो, अब तो कुछ नहीं बचा, बिल्कुल इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, टोटल पैसा लाया 57,500, 50,000 कैपिटल का, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था क्वेश्चन में ये था, और 7,500 लाया गुडविल प्रीमियम का। अगली एंट्री में गुडविल प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 2:1 है। देखो पूरे क्वेश्चन में मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहीं कैलकुलेट नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। अब तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके, आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे नए पार्टनर को उसका शेयर दे दिया 1/4, तो बाकी कितना बचा 3/4। इस 3/4 को पुराने पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो 2:1 में ही तो बांट रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू द ओल्ड रेशियो। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नरेशन में लिखा कि दिस गुडविल प्रीमियम हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप इसको हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा। आप इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जो लोग नहीं ले पाए वो अभी भी ले सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई कैन सेंड देम द कंप्लीट PDF ऑफ द एंटायर एडमिशन चैप्टर। थैंक यू सो मच।